I love white. So I basically live in white when I'm like at home and anywhere I go out, I basically live in white. So for me, it's a plain white kurta with a white churidar and a red bandhani dupatta. And I think that suits me the best. And that's where the buck stops. We take a cut short and call it for the day. With a new dimension, a new horizon, we will be back. Until then, read us in. Bye in Jammu. For the Moon, Mars, Jupiter, and the outer galaxies of Alpha Centauri. इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेलीब्रांड्स। ओह नो, पार्टी में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और कोई ड्रेस होती ही नहीं फिट, पैंट्स की चढ़ती ही नहीं है जिप, ये गाउन भी हो गया बहुत टाइट, स्कर्ट के बटन से करनी पड़ती है फाइट। आपको जरूरत है 5 किलो कम करने की, इसलिए आपको चाहिए नया साइक्लोन डाइट, एक चमत्कारी वेट लॉस सिस्टम जो सिर्फ 2 दिनों में आपका वजन 5 किलो कम कर देगा। जी हाँ, 5 किलो सिर्फ 48 घंटों में, ये हमारी गारंटी है। ना नपातुला खाना, ना कैलोरी काउंटिंग, एनर्जी से भरपूर ये पावर पैक पैकेट शरीर की चर्बी को तुरंत पिघलाकर आपका वजन 5 किलो कम कर देगा। इसके ऑल नेचुरल फार्मूला में है फ्रूट जूस और एंजाइम युक्त बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करके तंदुरुस्ती बहाल रखे, यानी जल्दी से जल्दी 5 किलो घटाकर भी चेहरे की रौनक बरकरार। साइक्लोन है एक थर्मोजेनिक ब्लेंड जो जल्दी फैट बर्न करती है। साइक्लोन है एक फाइबर ब्लेंड जो शरीर को साफ करती है। साइक्लोन है एक हर्बल ब्लेंड जो आपके सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करती है। इसके हर सर्विंग में मौजूद है यूनाइटेड स्टेट्स रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के मुताबिक विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा, यानी साइक्लोन आपका वजन कम करेगा, पोषण नहीं। 6 सैशेस वाला साइक्लोन डाइट आपको मिलेगा सिर्फ 1099 रुपए में। गारंटी है सिर्फ 2 दिनों में 5 किलो कम कीजिए, वरना आपके पैसे वापस। साइक्लोन डाइट को पानी में मिलाइए और स्वादिष्ट सिट्रस शेक तैयार। अभी फोन कीजिए और पाइए ये साइक्लोन मिक्सर बिल्कुल मुफ्त। ऑफिस में रखिए या किचन में, आपको साइक्लोन डाइट मिस नहीं करना पड़ेगा। 1000 रुपए का यह मिक्सर बिल्कुल मुफ्त। सभी ऑर्डर्स वीपीपी से भेजे जाएंगे। आप अपना ऑर्डर हमें इस पते पर भेजिए। टेलीब्रांड्स डिपार्टमेंट, साइक्लोन डाइट 420, PO Box 8994, मुंबई 72। साइक्लोन डाइट की कीमत है सिर्फ 1099 रुपए, पोस्टेज और हैंडलिंग एडिशनल। आप अपना ऑर्डर स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फैक्स भी कर सकते हैं। आप अपना ऑर्डर इस 24 आवर्स ऑल इंडिया हॉटलाइन नंबर पर कीजिए 1600119000। तो फोन उठाइए और अभी ऑर्डर कीजिए। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेलीब्रांड्स। बधाई जो है एक बड़ा कॉमन वर्ड है जो आम जिंदगी में इस्तेमाल होता है। Basically about celebration. It sounds really different, about sharing love, happiness, one big celebration. And the one word that is used mostly at any celebration is बधाई हो, बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई बधाई is very close to my heart. It's very near to my heart. The kind of emotion I feel in day-to-day life, I feel as a person. Badhai is very close to me. First heard the story, I've seen the original remake, and Satish was looking for somebody who had a fresh, innocent face. He met me, and then he was very happy because he could see that, somewhere I fit to the role. Satish ji was on the lookout for this
girl who could fit the character of Banto Betty, and he thought I did, and he approached me, and when he narrated the script to me, I just loved it, and I found it really, really exciting. I've got a very good cast in the film. I've got Shilpa Shetty, and I've got Kirti Reddy, I've got Amrish Puri, I've got Farida Jalal, I've got Rohini Hattangadi, then they're classmates of mine from National School of Drama, Govind Namdev and Anand Desai, and there is very important character which is done by Dr. K. Vishwanath. Anil Kapoor is playing a very different kind of a role in this film. Well, I play this Punjaban, actually a Punjabi Christian. She comes into the hero's life only to make his life miserable for him. Comic character. Playing a Catholic girl, and it's her name is Florence. The girl is more full of life. She's very bubbly, and well, for me it was something different because it's very unlike me. It's a good achievement. Once you go into your character, I think that's what we did. And अनिल कपूर है जो ये रोल कर रहा है, जो कि हैप्पीनेस स्प्रेड करेगा इस फिल्म में, जो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड स्प्रेड करेगा, जो कि जिसको कि सबको खुशियां प्रदान करेगा, लेकिन हमको पता है कि उसको कुछ इसके बार्गेन में नहीं मिला है. हो सकता है वो लूजर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है विनर जो होता है वही विनर रहे. हम कई बार ऐसा भी होता है कि लूजर भी जो है वो विनर हो, और ऐसी भावना अगर किसी के दिल में आ जाए तो वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करती है. It has everything in the film. Like I said, it has drama, it has comedy, it has the love, unconditional love that it talks about, happiness. Well, I had the opportunity of working with K. Vishwanath ji, Amrish ji, Anil Kapoor. He has this undying passion for every shot. He always has this. अभी जा सुबह भी जा रात को कर विदा दिलरुबा. Endorsements and ads and lifestyle, and the game, like if you've seen what they used to play and what they currently play, it's really deteriorated. I think partly my shift to football has been because the interest in the game of the players is reduced so much. According to their performance, it comes to us. We can see it that for what they are playing, I think they really play for themselves. Indian cricketers play for money and sometimes they play for the country, so I will go both ways. असलम भाई, मेरे असलम भाई, असलम भाई, असलम भाई, असलम भाई. दुबई का चश्मा, चीन की चड्डी और ईरानी चाय. असलम भाई, असलम भाई, असलम भाई, असलम भाई. कच्चा पक्का 320 उधार की बीड़ी. तुम मेरा चेहरा कयामत है और बॉलीवुड की शामत है. ना तू नंगा, ना तू हकला, ना तू गंजा. असलम भाई, हाथ में 5 उंगली, हीरो बन जा. असलम भाई, माधुरी पछताएगी, ऐश्वर्य करेगी. असलम भाई, असलम भाई, असलम भाई. दुबई
का चश्मा, जिनकी चड्डी और की रानी जान। Take a break. फुटपाथ हर सड़क की है आशियां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। Cricket rules actually over here, maybe because of the sponsorships and other games have been neglected. Other sports are not neglected, but cricket is given more importance than every other game. Badminton and chess, we both have great stars in both the sports. Just now, Gopi Chand, he won that world championship. So he is given some sponsorship from the Indian. So of course, we can say that some sports are, sponsorship has been given, but even then cricket is given much more importance because there are more fans of cricket. It was always cricket all along. I really think that other sports are neglected because the main hockey player Dhyan Chand, we have just forgot him. But we also know Sunil Gavaskar, we know all the cricket players, but we hardly know any hockey players. That is, other sports are really neglected in front of cricket. Cricket has become a national passion. I think it's come to a stage when we can even think of making it a national sport because hockey was never given as much hype as cricket was. I believe in India, other sports are definitely neglected. Other sports like basketball should be given a high boost. All the other sports have been ignored because of cricket. The other sports are definitely neglected because hockey and all that are not given a simple chance. In the school also we do not get chance for that hockey. We have never heard about it, that sports like hockey in our school. तो मेरी जिंदगी, तू ही तो मेरी बंदगी, कैसे बताऊं तुझको, तू ही मेरा प्यार है, तेरा इंतजार है, तू ही मेरा प्यार है। तू ही तो मेरी जिंदगी, तू ही तो मेरी बंदगी, कैसे बताऊं तुझको, तू ही मेरा प्यार है, तेरा इंतजार है, तू ही मेरा प्यार ऐसे झूम
cricket is the best game for India. Whether one from the childhood to the aged person, everyone will like to watch it. And the bad thing I will say is that they should stop match fixing. Because of this one thing, our India is losing a cricket. Like all the, trust which we have for Indian players, we are losing it. Cricket is definitely the best thing for India and it's nothing bad about it. From cricket we come to learn many things such as sportsmanship and all. And the bad thing about cricket is that they are showing that just giving special names to one like Jumbo. I think I don't appreciate that. One good thing about cricket is that everyone can play cricket. Old people, young people, everyone they just need a bat and a ball to start. And bad thing about cricket is that this sport is so glamorized that people just play for popularity's sake. It's a sport. Every sport is good for our body, but the most bad thing is that glamour for the sportsmen. Match fixing is the worst thing about cricket. When we hit a six, our girlfriend are impressed. But when we get out, our girlfriends are not impressed. This is worst thing about the cricket. We get it almost every night. When they're moving a big and right at the supernatural all tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Here and out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and lucky sight. Everybody's dancing in the and we never fight. You can dance and पता है और इनका बायां कान है 67.62, तो ये काफी एक समान है। असमान कानों वाले धावक समान कानों वाले धावकों के मुकाबले ज्यादा धीरे दौड़ते हैं। ये हवा की गति या चेहरे के एरोडायनेमिक पहलुओं का सवाल नहीं है। तो यहाँ क्या चल रहा है? संतुलित शरीर वाले लोगों के लिए तेज दौड़ना ज्यादा आसान होता है और ज्यादा संतुलित कान होने का अर्थ होता है आपका शरीर भी ज्यादा संतुलित है। बहुत हैरानी होती है जब आप इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये असंतुलन बहुत ही बारीक होता है। यूँ समझिए कि बस कुछ मिलीमीटर का, फिर भी हमें इनका पता चल जाता है। लोगों के संतुलित चेहरे असंतुलित चेहरों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक लगते हैं। आप ये मानते हैं मैं आपको कितना बेहतर लगता हूँ, सामान्य या संतुलित? लेकिन संतुलन का ये सारा सिलसिला है क्या? तो ये सब शुरू होता है गर्भाशय से। शुरू में हम सब बाहरी जीवों जैसे लगते हैं, फिर हम संतुलित तरीके से बढ़ते हैं और अगर सब कुछ सही चलता रहे तो काफी संतुलित वयस्क बन जाते हैं। लेकिन हमेशा सब कुछ ठीक नहीं चलता। अब जाहिर है कि एक संतुलित चेहरा खासतौर से एक स्वस्थ चेहरा होता है, पर अगर आप किसी परजीवी द्वारा प्रभावित हों या आप में जन्म से बनावट का कोई दोष हो जिससे आपके चेहरे का आकार बिगड़ गया हो तो वो असंतुलित हो जाता है और असंतुलित चेहरे को देखते ही आप उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं और आप उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रामाचंद्रन का कहना है कि अगर टेपवर्म जैसे किसी परजीवी ने आपको कष्ट दिया है और जिस वक्त आप बड़े हो रहे हैं वो भी आपके अंदर रह रहा हो तो न सिर्फ वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर बल्कि आपके चेहरे पर भी प्रभाव डालेगा। अगर आप किसी परजीवी द्वारा प्रभावित हैं तो हो सकता है इसकी संभावना कम हो कि आप बच्चा पैदा कर सकें। इस वजह से हमेशा बेहतर होता है कि असंतुलित चेहरे से दूर रहा जाए और यही कारण है कि अगर कुछ सही नहीं हो तो हम उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि चेहरा स्वास्थ्य का प्रदर्शन करता है। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि मेडिकल स्कूल में आपको सबसे पहली चीज ये सिखाई जाती है कि चेहरे को देखो। स्टीफन मार्क्वाइट के अध्ययन में जिन चेहरों को खूबसूरत करार दिया गया वो ज्यादा संतुलित थे,
कम आकर्षक चेहरे कम संतुलित थे और उनके असंतुलित होने से अरुचि का भाव पैदा होता था और चेहरों के प्रति इस सहज प्रतिक्रिया का हॉलीवुड ने भी बहुत फायदा उठाया। आपने देखा होगा साफ त्वचा वाला व्यक्ति हीरो होता था और त्वचा में किसी प्रकार के दोष वाले से फिल्म बनाने वाले दर्शकों को ये बताते थे कि इस आदमी से बचकर रहना। तो त्वचा सिर्फ स्वास्थ्य को ही नहीं दिखाती है, ये साथ में दिखाती है नैतिकता को। मैं कितनी दुखी हूँ। मेरी सौतेली माँ और बहन पार्टी में जा रही हैं। काश कि मैं भी जा पाती। और अब तुम जाओगी? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी परी माँ हूँ बेटी। मेरा दिल सोने का है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तुम डरावनी हो। ये मेरा चेहरा देख रही है। बदनसीब औरत। ये सच है कि खराब त्वचा वाले लोग बुरे नहीं होते हैं। मतलब ये बात आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं, पर इसके बारे में अध्ययन किया गया है। कुछ खास विषयों पर बातचीत की गई उनसे जिनकी त्वचा साफ सुथरी थी और उनसे भी जिनके चेहरे पर मुहासों के निशान थे या कोई बड़ा सा दाग था। और ये पता चला कि जिन लोगों की त्वचा सामान्य नहीं थी या अच्छी नहीं थी वो ज्यादा झिझक रहे थे, ज्यादा परेशान रहे और उनमें खौफ भी ज्यादा था। हेनरी डी लॉर्ड बीनिया को चेहरे का कैंसर है। लोगों की घूरती आंखों और उनकी बातों से ये बखूबी वाकिफ है, लेकिन ये अपनी सूरत के बारे में बहुत दार्शनिक है और बच्चों की सच्ची प्रतिक्रियाएं इन्हें दुखी नहीं करती हैं। मुझे बहुत दिलचस्प लगता है एक 5 साल के बच्चे से इस बारे में बातें करना कि मेरी एक ही आंख क्यों है या मैं अजीब क्यों दिखता हूँ। और मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ कि कैसे एक 5 साल का बच्चा दिलचस्पी दिखाता है और मुझसे एक बिल्कुल अजनबी से मजे से बात करता है इस बारे में कि मुझे एक आंख के साथ रहना कैसा लगता है। ये हेनरी हैं 21 साल के, जब ये पढ़ाई कर रहे थे वकील बनने के लिए और अभी भी काम कर रहे हैं। अगर मेरी हालत बहुत खराब होती तो शायद कुछ और बात होती, पर बेशक एक आंख को खो देने से, चेहरा थोड़ा सा अजीब हो जाने से, मेरे चेहरे के बाईं तरफ की सभी नसों और मांसपेशियों के मर जाने से मेरे चेहरे का सिर्फ दायां हिस्सा ही हिलता है और जब मैं खुश होकर हंसता हूं तो इसका बायां हिस्सा बिल्कुल नहीं हिलता है। पर इस सब के बावजूद किसी वजह से मुझे इसकी कोई चिंता नहीं होती। हेनरी 42 साल के थे जब इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इन्हें एक दुर्लभ चेहरे का कैंसर हो गया है। ये इनकी बाईं आंख के नीचे से शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ता रहा। हेनरी को गर्व है अपने परिवार पर जिसने इस मुश्किल घड़ी में हर कदम पर इनका साथ निभाया। मेरा मतलब मेरी बीवी, मेरे बच्चे इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। वो कोई सहानुभूति जाहिर नहीं करते कि मेरी हालत बहुत खराब है और मुझे लगता है एक मरीज होने के नाते मुझे इससे बहुत मदद मिलती है क्योंकि मुझे इसके बारे में याद नहीं दिलाया जाता। लोग मुझसे हमदर्दी नहीं करते। लोग मुझसे ये नहीं कहते कि काश उन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया होता और इसलिए मैं खुद को संभाल पाता हूँ। हो सकता है कि शक्ल में धीरे धीरे आए बदलाव के कारण हेनरी और इनके परिवार के लिए इसे स्वीकार करना कुछ हद तक आसान रहा हो। अचानक आया बदलाव एक अलग तरह का सदमा पहुंचा सकता है। डॉक्टर स्टीफन मार्क्वार्ट सिर्फ 4 साल के थे जब एक कार दुर्घटना में इनकी मां का चेहरा बुरी तरह खराब हो गया। मेरी नानी और आंटी मुझे वहाँ ले गईं। वो मेरी नानी का घर था और फिर बेडरूम से मेरी माँ बाहर आई। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, नाक बिल्कुल चपटी हो चुकी थी, ऊपर के सारे दांत गायब थे, दोनों जबड़ों को तार से बांधा हुआ था, चेहरा कटा हुआ था और कई टांके लगे हुए थे। वो बहुत डरावनी लग रही थी। मुझे तो जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया। मैं पीछे मुड़ा। उन्होंने अपने तार से बंधे हुए जबड़े से कहा, स्टीफन हाय, और मैं चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर भागा। मुझे नानी, आंटी, अंकल किसी पर भी विश्वास नहीं हुआ और फिर कई हफ्तों तक मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं रहा। वो अब मेरी माँ नहीं थी, पहले जैसी दिखती नहीं थी, पहले की तरह बातें नहीं करती थी और फिर सबने कहा ये तुम्हारी माँ है। और ये सब बहुत मुश्किल था एक 4.5 या 5 साल के बच्चे के लिए। ये ऐसा था कि तुम्हारी माँ वापस आ चुकी है, अब तुम खुश रहो। दिलचस्प बात यह कि दुर्घटना के बाद जिन सर्जन ने उनका इलाज किया वो एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन थे, जैसा कि मैं हूँ, और मुझे लगता है कि ये उसी हादसे का असर था कि मैं इस क्षेत्र में आया। जिंदगी बहुत अजीब है और कभी कभी आपको पता नहीं चल पाता है कि आप कहाँ हैं जब तक कि आप खुद को पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं।
records your favorite TV program. The digital video recorder from LG makes times live viewing easy. On a screen extremely thin and extremely wide, because life's too short to waste time. LG, digitally yours. Wild animals walk through your backyard. History is relived in your living room. Technological breakthroughs occur before your very eyes. Crime Busters teach you the tricks of their trade. And all you have to do is sit back and enjoy yourself with your family. Family Time, Monday to Friday night, 7 to 10 p.m. only on Discovery Channel. Brought to you by the new McDonald's wraps. So delicious you won't get it off your mind. ऑफिस में तो सबको याद था. Nice flowers. तुमसे कहना है कि तुम हो पास, हर पल में है तुम्हारा एहसास. तुमसे कहना है Recent years and mommy's favorite. Ice. कैसे जमेगी fast forward ice? Fast forward ice. Simple. नया आइस मैजिक फास्ट फॉरवर्ड आइस सिस्टम के साथ अब आइस बने और भी फास्ट. बटन दबाते ही. फास्ट फॉरवर्ड आइस किस लिए? क्या आप इसे सैकड़ों बार देखकर फिर देखना चाहेंगे? जैसे कोई प्यारी सी धुन जैसे सुनते हैं आप बार बार, तब कुछ छू लेता है आपको, आपके मन को, और आप याद करने लगते हैं उन भूली बिसरी यादों को, ताकि आप अपने बच्चों से उनका जिक्र कर सकें. अगर ऐसा है तो आप खुद से पूछेंगे, क्या ये क्लासिक है? देखिए क्लासिक डिस्कवरी के 60 मिनटों में वक्त की हदों को तोड़ता डिस्कवरी का अजीम और शान शाहकार, सोमवार रात 8 बजे केवल डिस्कवरी पर. This program is brought to you by the new McDonald's wraps. So delicious you won't get it off your mind. And Raymond, the complete man. स्टीफन के बचपन के अनुभव ने न सिर्फ इन्हें एक सर्जन बनाया, उसने इन्हें सुंदरता के नियम ढूंढने के लिए भी प्रेरित किया और इन्हें अपनी खोज के पहले सुराग मिले एक ग्रीक दार्शनिक की खोज में. पाइथागोरस याद है? त्रिभुज में समकोण के सामने की रेखा का वर्गफल दूसरी दो रेखाओं के वर्गफल के जोड़ के बराबर होता है. शुक्रिया एलिजाबेथ, बिल्कुल सही जवाब. उन्होंने दावा किया न सिर्फ सुंदरता के रहस्य का परिमाण निर्धारित करने का, बल्कि उसे समझने का भी. उन्होंने दावा किया कि उन्हें ब्रह्मांड में सुंदरता नजर आती है. ये बहुत ही बड़ी बात थी. मैं चेहरों में सुंदरता ढूंढता हूँ, उन्होंने कहा उन्हें ब्रह्मांड में सुंदरता मिली है. बहुत हैरानी की बात है ये. पाइथागोरस को ये एहसास हुआ कि पौधे और जानवर बहुत सही गणित संबंधी नियमों के अनुसार बढ़ते हैं. ये सिर्फ यूं ही नहीं हो जाता कि फूल खूबसूरती से खिलता है. ग्रीक लोगों को पता चला कि ये सब एक खास रेखा गणित संबंधी अनुपात के हिसाब से होता है, लेकिन पुनर्जागरण काल तक ये अज्ञात था. एक इटालियन ने इसका गणित पेश किया. उसने पता लगाया कि सुंदरता का रहस्य 1 और 1.618 का अनुपात है. अच्छा तो लग रहा है. ओह मिस लिंग्विनी, जरा रुकिए, जरा अपना चश्मा तो उतारिए और अब जरा अपनी जुल्फों को बिखराइए. मिस लिंग्विनी, आप सुंदर हैं. और फिर भी आप यकीन नहीं करेंगे कि 1.618 असरदार है. ऐसा कीजिए कि जमीन से अपनी नाभि तक की लंबाई नापिए और फिर अपनी नाभि से अपने सिर तक की. अगर आपका शरीर सुंदर है तो ये अनुपात होना चाहिए 1 और 1.618, और ये अनुपात आपके सारे शरीर पे मौजूद होता है. लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया. कलाकारों ने इस पर ध्यान दिया. एक सुंदर चेहरे पर मुंह की चौड़ाई, मिसाल के तौर पर किसी भी चेहरे पर नहीं, सुंदर चेहरा होना चाहिए था. अगर चेहरा सुंदर था तो मुंह की चौड़ाई नाक की चौड़ाई से बिल्कुल 1.618 गुना थी. अगर चेहरा सुंदर नहीं था तो ऐसा नहीं था.
दांतों के डॉक्टर्स को पता चला कि ऊपर बीच के दांत की चौड़ाई बगल के दांत लैटरल इंसाइजर से 1.618 गुना ज्यादा थी, तो बीच का इंसाइजर बगल के लैटरल इंसाइजर से 1.618 गुना ज्यादा चौड़ा था। कमाल है। कुछ और उदाहरण? आपकी हर उंगली को फैलेंजे कहते हैं और उंगली की हर हड्डी को फैलेंक्स कहते हैं, और आपकी सबसे बड़ी फैलेंक्स बीच वाली फैलेंक्स से 1.618 गुना ज्यादा लंबी होती है, और बीच वाली फैलेंक्स नाखून वाली फैलेंक्स से लंबाई में 1.618 गुना ज्यादा होती है। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है। ये अंक बार बार हमारे सामने आते रहते हैं। आपको जरा याद है क्या ये सिद्धांत इन जैसे एक असली इंसान पर लागू होगा? अपना सिर जरा सा पीछे कीजिए। ये है जिसे हम कहते हैं गोल्डन डिवाइडर। ये किसी भी रेखा को या फासले को 1 और 1.618 के अनुपात में बांटता है, जिसे कि हम सुनहरा और सबसे अच्छा अनुपात कहते हैं। एक सुंदर चेहरे में हम देखेंगे कि मुंह की चौड़ाई नाक से 1.618 गुना ज्यादा होती है, और ज़ारा पे ये सही है। अगर आप दांत को देखें तो पता चलेगा। अपने दांत दिखाइए, जरा मुस्कुराइए। ऊपर के बीच के दांत की चौड़ाई दाईं तरफ के साथ के दांत से 1.618 गुना ज्यादा है, और ऐसा ही है दूसरी तरफ भी। ऊपर बीच के दांत की चौड़ाई दूसरी तरफ के दांत से 1.618 गुना ज्यादा है। बहुत हैरानी की बात है कि एक सुंदर चेहरे पर यह अनुपात रह रहकर दिखाई पड़ता है, और ज़ारा के साथ भी ऐसा ही है। अगर मैं इसके मुंह की चौड़ाई नापूं, नुकीला है। माफ कीजिएगा, मैं सर्जन हूँ, मुझे नुकीली चीजों की आदत है। मैंने खुद को कभी नहीं काटा, तो अगर मैं इनके मुंह की चौड़ाई इनके चेहरे के साथ नापता हूँ तो कैमरा शायद देख सकता है कि मुंह की चौड़ाई गाल के किनारे तक की दूरी से 1.618 गुना ज्यादा है। तो आपने देखा कि ये संबंध चेहरे पर बार बार नजर आता है, और ज़ारा इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तो ज़ारा का चेहरा स्वर्ण अनुपात के अनुसार है। ये बुरा तो नहीं, अच्छी बात है। लगता है 1 और 1.618 का स्वर्ण अनुपात सभी सुंदर चेहरों पर लागू होता है। अब सुंदर चेहरे को समझने के इस गणित के विचार को स्टीफन मार्क्वार्ट एक कदम और आगे ले गए हैं। अगर आप अपनी नाक को सामने से देखें तो आपकी नाक एक त्रिभुज है, और अगर साइड से देखें तो भी नाक एक त्रिभुज है। एक सुंदर चेहरे में इस त्रिभुज की 2 रेखाएं आधार से 1.618 गुना लंबी होती हैं, और त्रिभुज से आप बना सकते हैं पंचभुज। चेहरे का सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा आकर्षक भाव कौन सा होता है? मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। जब मैं मुस्कुराता हूँ तो क्या आपको मेरे चेहरे पर एक पंचभुज दिखने लगता है? ये ऐसे ऐसे ऐसे। बिल्कुल सही। स्टीफन मार्क्वार्ट ने 1.618 के अनुपात वाले त्रिभुजों और पंचभुजों को मिलाकर एक नकाब बनाया। इनका दावा है कि जो चेहरा इस नकाब के जितना करीब होगा उतना ही खूबसूरत होगा। केट मॉस से शुरुआत करते हैं। ठीक है। केट की सूरत बाकी सबसे काफी अलग है, और अगर मैं ये नकाब इन पर रखता हूँ, आप देख सकते हैं कि काफी करीब है। केट के चेहरे की दिलचस्प बात यह है कि इनकी आंखें थोड़ी ज्यादा दूर दूर हैं, इनकी भौहें अच्छी तरह बनी हैं, इनके होंठ, इनकी नाक, इनके जबड़े की रेखा सब बहुत अच्छी है। हालांकि बालों की रेखा बिल्कुल वहाँ नहीं है जहाँ होनी चाहिए। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, यही नकाब पुरुषों पर भी चढ़ता है, और टॉम क्रूज इसमें पूरी तरह से समाते हैं। बल्कि स्टीफन का दावा है कि ये किसी भी इंसानी चेहरे पर चढ़ता है, बशर्ते वो चेहरा सुंदर हो। ये है मेरे पसंदीदा अभिनेता, स्टेज, स्क्रीन और टेलीविजन के स्टार। देखते हैं इन पर नकाब कैसा लगता है। क्या खूबसूरत आदमी है। ओह, ये पॉल न्यूमैन है। हाँ, पॉल न्यूमैन। एक मिनट। नहीं, 1 मिनट। ये पॉल न्यूमैन से बेहतर है। जॉन क्लीज हैं। अरे वाह, क्या कह रहे हैं आप? मूंछों के लिए नकाब है। मुझे हैरानी हुई कि नकाब मेरे चेहरे पर बिल्कुल ठीक नहीं बैठा। हालांकि स्टीफन के पास एक अच्छा बहाना था। ओह, असल में आपके नक्श बहुत मर्दाना है। क्या अंदाज है कहने का। अच्छा, तो आंखें कैसी होती हैं? मर्दों में आंखें हमेशा पतली होती हैं, और आपकी आंखें भी नकाब के हिसाब से पतली हैं। होठ पतले हैं। आप देख सकते हैं कि नकाब के अनुसार आपके होठ पतले हैं, और नाक थोड़ी छोटी है। नाक को लंबा करवाऊं? हाँ, ये अच्छा रहेगा। ठीक है। नकाब को बना लेने के बाद डॉक्टर मार्क्वार्ट ने इसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया एक सांचे की तरह अपने मरीजों के चेहरों के विकारों को कम करने के लिए। तो अब एलिजाबेथ हर्ली, ये भी लगभग आपके जितनी सुंदर है। जॉन, मुझे लगता है आप सोचते हैं, अरे वाह, ये काफी करीब है। भौहें नकाब के ऊपरी हिस्से के छोर पर हैं,
और इनमें ये झुकाव बेहद सुंदर है। उसे मत बताइएगा वरना संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये बात हमारे बीच ही रहेगी। गाल बिल्कुल सही है, नाक भी नकाब के अनुसार है, होठों की चौड़ाई बहुत सही है और निचले होठ का ये आकार बेहद खूबसूरत है। ठोड़ी और जबड़े का आकार भी सही है। चेहरा बिल्कुल नकाब के अनुसार है। तो एलिजाबेथ का चेहरा लगता तो है बिल्कुल सही, पर मेरी अपनी राय है कि तुम्हारी नाक बहुत ही नहीं, तुम नहीं एलिजाबेथ, वो दूसरी एलिजाबेथ। तो यही सब कुछ है जो हम कह सकते हैं कि सच है सुंदरता के लिए। तो अब हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है या फिर इस मामले में देखने वाला सुंदरता की आंखों में है। दूसरे शब्दों में वो चीज जो जगह और वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए उस दुनिया में जिसका नाम है फैशन। त्वचा की रंगत के फैशन को लीजिए। यूरोप में सदियों पहले सफेद दिखने को एक फैशन माना जाता था। एलिजाबेथ प्रथम अपने चेहरे पर सफेद सीसे और सिरके का घोल लगाती थी ताकि जितना हो सके उतनी सफेद दिखे। बदकिस्मती से वो घोल जहरीला था और बह जाया करता था। फिर 400 साल बाद अचानक ही सन टैन का रिवाज चल पड़ा। पहले इसे एक आम आदमी, एक मजदूर की पहचान समझा जाता था, लेकिन अब सन टैन का मतलब है कि आप इतने अमीर हैं कि धूप में घूमकर भी अपनी छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। हॉलीवुड में 50 और 60 के दशकों में बनी फिल्मों का पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। सभी ये मानने लगे कि त्वचा का गहरा रंग स्वास्थ्य, समानता और खूबसूरती का प्रतीक है। तो आया सन टैन, लेकिन अब इसका फैशन खत्म हो रहा है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ फैशन के अलावा भी कुछ है? डॉक्टर रामाचंद्रन ये बताने का साहस कर रहे हैं कि हमारा रुझान सफेद त्वचा की तरफ क्यों रहता है। हर चिकित्सा संबंधी विद्यार्थी को ये सिखाया जाता है कि एनीमिया, साइनोसिस जिसमें कि त्वचा में नीलापन झलकता है, और जॉन्डिस जिसमें कि त्वचा पर पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, इन सब का सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों में पता लगाना ज्यादा आसान होता है। आप दूर से ही लगभग 6 मीटर दूर से देखकर कह सकते हैं कि ये गोरी लड़की एनीमिया से पीड़ित है, क्योंकि उसकी त्वचा सफेद है। और सच ये है कि इस मामले में गहरी रंगत वाली लड़की में ये लक्षण पकड़ में नहीं आते हैं। तो मतलब गहरी रंगत वाली लड़की कह सकती है, आओ मेरे साथी बन जाओ, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एनीमिक है, जबकि सफेद त्वचा वाली लड़की में ये लक्षण साफ झलकते हैं। यानी सफेद त्वचा जैसे फैशन का भी कुछ जैविक आधार हो सकता है। सिर पर मौजूद चमकीले बाल युवावस्था, प्राण शक्ति और स्वास्थ्य की पहचान होते हैं, मगर बालों के स्टाइल का फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और वो भी अचानक। ऑफिस में तो सबको याद था। Nice flowers. Drinks and cakes and mommy's favorite. With lots of ice. Ice? कैसे जमेगी fast forward ice? Fast forward ice. Simple. नया आइस मैजिक फास्ट फॉरवर्ड आइस सिस्टम के साथ आइस बने और भी फास्ट। बटन दबाते ही Fast forward ice? किस लिए? Wild animals walk through your backyard. History is relived in your living room. Technological breakthroughs occur before your very eyes. Crime Busters teach you the tricks of their trade. And all you have to do is sit back and enjoy yourself with your family. Family Time, Monday to Friday night, 7 to 10 p.m. only on Discovery Channel. Brought to you by the new McDonald's wraps. So delicious you won't get it off your mind. Something really big is coming at you. Bigger than you've ever experienced before. They are Discovery's biggest shows. They are unforgettable. They are incredible. And they are hitting your screens with a vengeance. Watch out for Discovery's biggest shows tomorrow night at 10, only on Late Night Discovery. Brought to you by LG Electronics. Digitally yours.
program is presented by new tangy tasty Maggi noodles tomato flavor. Archie's Gallery, a perfect place for every emotion. Denim, for the man who doesn't have to try too hard. And ऐसा स्वाद कि रहा न जाए, छोड़ूंगा नहीं MDH Kitchen King मसाला. वही बारिश, वही आबो हवा, एक ही सरजमी है, सरहद हैं अलग अलग, फिर भी सुनने सुनाने को कई दास्तां, आखिर वही गुलसितां. This program is brought to you by Montex Headline Ballpen छोटी पकड़ मोटी पकड़ एक साथ सिर्फ 7 रुपए में. And Duke Jackets, let your spirits fly. क्या आप इसे सैकड़ों बार देखकर फिर देखना चाहेंगे? जैसे कोई प्यारी सी धुन जिसे सुनते हैं आप बार बार, तब कुछ छू लेता है आपको, आपके मन को, और आप याद करने लगते हैं उन भूली बिसरी यादों को, ताकि आप अपने बच्चों से उनका जिक्र कर सकें. अगर ऐसा है तो आप खुद से पूछेंगे, क्या ये क्लासिक है? देखिए क्लासिक डिस्कवरी के 60 मिनटों में वक्त की हदों को तोड़ता डिस्कवरी का अजीम और शान शाहकार, सोमवार रात 8 बजे केवल डिस्कवरी पर. This program is brought to you by the new McDonald's wraps. So delicious you won't get it off your mind. And Raymond, the complete man. Got some questions on your mind? Overweight or under? A second honeymoon. Or alone in Hawaii. Find your answers on Women's Hour, 12 noon every weekday. All new on Discovery Channel. Brought to you by Whirlpool Magic. Hand wash और hot wash का double magic. मुझे आशा की किरण दिखाई देती है. प्यार में सबके दिल की खुशी, तू प्यार कर जाने जा. देख मुझे तू मेरी नजर से, जानेगी तू फिर मेरी वफा, सुनेगी जो तू मेरे जिगर से, मिलेगी तुझे दुआ. यार के नए हंसी सफर में जीने की मिले अदा, ऐसा है ये प्यार तो है प्यार, ये तेरे लिए है प्यार. हाँ ये प्यार ये तेरे लिए है प्यार. हाँ ये प्यार है सभी के लिए प्यार, ऐसा है ये प्यार. जानम तू पास है, जीने की तू सांस है, ये धड़कने तेरे है नाम की, तू है दिल में, तू मेरी, हाँ तू मेरी यादों में, तू साथ है. ये प्यार की मतलब ये बेखुदी, ओ जाने मन जाने जा. यार मैंने जब तुझे ये दिल दिया, मेरे सारे गम हुए हवा, मेरे लिए तू मेरी बनी है, तेरा मैं तेरा हुआ. मेरी तू परी मोहब्बतों की, तू ही है मेरा नशा, ऐसा है ये प्यार.
कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। ना यकीन आए तो फिर दिल बदल कर देख लो। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। अपनी हर सांस पर नाम तेरा लिख दिया। एक तुझे पाने की खातिर खुद को पागल कर लिया। इश्क में तुम भी सनम हद से गुजर कर देख लो। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। जाने क्यों सारे जहां से हो गए हैं बेखबर। जब से तुम आँखों में आए जागती है ये नजर। अपनी रातों से मेरी रातें बदल कर देख लो। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। ताजा माल। ताजा माल is brought to you by Amul मिठाई रेंज। जिंदगी के मीठे पल हर पल। From Amul, the taste of India. सर बड़े हैरत की बात है, आपने शादी कर ली और किसी को पता ही नहीं चला। सबको पता चले इसलिए तो आज मैंने पार्टी दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कांग्रेस करण। थैंक यू। शादी मुबारक हो मिस्टर करण। शुक्रिया। मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि तुम मेरे पास हो। करण, क्या तुम हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करते रहोगे? प्यार कर, इकरार कर, इजहार कर, इनकार कर, चाहे जो भी दे सजा, तुझे अपना दिल देने का है मजा। तुम औरतों के दिल में क्या है कि कोई नहीं जान सकता। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। साढ़े नाड़ आएगी तो लाइफ बन जाएगी।
चीख सुनना चाहता हूँ। हमराज देखिए थर्सडे प्रीमियर में गुरुवार 17 अक्टूबर रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। तुम क्या जानो मेरे दिल में तुम रहती हो धड़कन की तरह, यार बदल न जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदल न जाना मौसम की तरह, देखो यार बदल न जाना मौसम की तरह। यार मंगया सिरबा के तो रोके केड़ी में खुदाई मंग ले, केड़ी में खुदाई मंग ले, यार मंगया सिरबा के तो रोके केड़ी में खुदाई मंग ले, केड़ी में खुदाई मंग ले, मर जान दे मर जान दे मर जान दे किसे दम नू होके केड़ी में खुदाई मंग ले, केड़ी में खुदाई मंग ले। का ये हाल है, सुर है न ताल है, फिर भी ये नाचेंगे, फिर भी ये गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, हमको हराएंगे, इनका ख्याल है। यार अपने घर जाओ, आसमां नीला है क्यों जानते हो, पानी ये गीला है क्यों जानते हो, ये जमीन गोर है क्यों जानते हो, ढोल में बोल है क्यों जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, अगर तुम क्यों घर से बाहर फिरते हो यार अपने घर जाओ, यार अपने घर जाओ। यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए, यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए, आप पिला दी छावा वे बावा विच पाके बावा वे, तेनु दिल दा हाल सुनावा वे, चल इश्क दे पतरे पड़िए। यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए, यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए, आप पिला दी छावा वे बावा विच पाके बावा वे, तेनु दिल दा हाल सुनावा वे, चल इश्क दे पत्थरे पड़िए। यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए, यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए। पहले पहले प्यार की पहली गल सुन ले, खिल गए हैं कलियां हर सू तू चुन ले, ख्वाबों की ताबीर के दिन जब आ ही गए, क्यों न दोनों मिलकर एक सपना बुन ले। दुनिया समझे या ना समझे, दुनिया जाने या ना जाने, ये इश्क दारों का वल्ला लग गया तो फिर क्यों डरिए। यारा दिल
मेरा रह रह कर तुझसे कहता है, रोक न दिल की बातें चाहे सब जाने। मैं तेरी हो गई रे सजना, तू मेरा हो गया रे सजना, अब मुड़ के पीछे क्यों तकना, दिल कहे जो क्यों ना करिए। यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए, यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए। यारा मेरे यारा, ओ यारा मेरे यारा, अज मेरी अखा ने तक्या नजारा। यारा मेरे यारा, ओ यारा मेरे यारा, अज मेरी अखा ने तक्या नजारा। हौली हौली बारी विचों पर्दा हटाया, हौली हौली बारी विचों, हौली हौली बारी विचों पर्दा हटाया, तो सामने चबारे विचों चन्न चढ़ आया। यारा मेरे यारा, ओ यारा मेरे यारा, अज मेरी अखा ने तक्या नजारा। यारा ओ यारा मेरे, अज मेरी अखा ने तक्या। नीले नीले नैना विच आथना दा रंग, तेरी चुन्नी च लकोया होया कैरनी, चुन्नी च लकोया होया कैरनी, चुन्नी च लकोया होया कैरनी। बारी चिख लोगे ते अद्धा बूहा टोके, लहरिए ते ओले नी मुखड़ा लकोके। बारी चिख लोगे ते अद्धा बूहा टोके, लहरिए ते ओले नी मुखड़ा लकोके। थोड़ा 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 कुंड सरकाया, थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा 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 कुंड सरकाया, तो सामने चबारे विचों चन्न चढ़ आया। यारा मेरे यारा, ओ यारा मेरे यारा, अज मेरी अखा ने तक्या नजारा। यारा मेरे यारा, ओ यारा मेरे यारा, अज मेरी अखा ने तक्या नजारा। शीशे मूर बह के होना नीले नीले नैना विच पाई जदों गजले दी तार सी, पाई जदों गजले दी तार सी, पाई जदों गजले दी तार सी। मोतिये दे फुੱਲ वांगू महक पई जवानी, आया रूप उत्ते वखरा निखार सी, रूप उत्ते वखरा निखार सी, रूप उत्ते वखरा निखार सी। मैनू कहंदी माना वे सोहणिया जवाना, तेरे उत्ते आया वे दिल बेईमाना। मैनू कहंदी माना वे सोहणिया जवाना, तेरे उत्ते आया वे दिल बेईमाना। रब दी सो जदों ने हस के विखाया, रब दी सो जदों ने, रब दी सो जदों ने हस के विखाया, तो सामने चबारे विचों चन्न चढ़ आया। यारा मेरे यारा, ओ यारा मेरे यारा, अज मेरी अखा ने तक्या नजारा। यारा मेरे यारा, ओ यारा मेरे यारा, अज मेरी अखा ने तक्या नजारा। हम और आप एक थी और आपकी बातें। Sitting on the seaside and doing stuff should be banned. We can do whatever we want. The meaning of Valentine's is fading away. Is it a fact or fiction? It's a good experience. I like guys with shortcut hair. Guys with short hair look real cool. लड़कियों के लंबे बालों में Yeah, I like to play Holi. Yeah, it's fun. It's not too happening these days. Jam up with Just Jammin' every Friday 5:30 p.m. and every Sunday 9:30 p.m. only on
Z Music. Just Jamin is brought to you by Godrej Kali Mehndi. काले बाल कुदरती देखभाल। अगर हम यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाए तो जंगल, मंगलवार 15 अक्टूबर दोपहर 1 बजे सिर्फ जी सिनेमा पर। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। अरे महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार